starting my journey now from the last point I wanted to visit in Srirangapatna. I think I have hurried up in visiting all the places. In this place you can comfortably invest around maybe 5 to 6 hours and thereafter cover each spot perfectly. Especially that summer museum has got lots and lots of things to see, imbibe. Even in this gumbas, since I was wearing a boots and footwear is not permitted near it, so I couldn't remove it and go inside and see. All I saw was a skeleton from outside, but still the real soul was inside where he is buried, the tomb. So if you can spend more time, I think I'll recommend Srirangapatna just as a one-day excursion for those who come from Bangalore and Mysore. For those who are actually coming around on rides and trips, I think Srirangapatna should be kept aside as a single day of exploration alone. Lots of things to see in this place. For the time being, heading to Shravanabelagola. Time baj raha hai around 1 o'clock. I'm already pretty hungry, 1:15 on the clock rather. So what I'm going to do is, on the way, if I find something interesting, I'll eat. Else, reach Shravanabelagola, explore that place, and on the way to Belur, stop over for a lunch, late lunch. Look at the heap of sugarcane over there. It is even bigger than the whole truck in itself. Not just one, there are two actually. Look at the number of sugarcane they have. So the ride to Shravanabelagola is on, लेकिन एक beautiful सी lake रास्ते में मिला. Kash मैं सोचता हूँ if I only had a drone with me, I would have just flown it around and shown you how beautiful it looks. Magnificent. It is full of water. Even now when the rainy season is not on, पानी गया नहीं यहाँ से. Anyhow, it appears to be a forest route. बहुत twisties है and leopard sighting, leopard crossing के लिए warning भी दिया जा रहा है. So my God, I'm in a slightly dangerous area again. अभी इस जगह का नाम है, इट शुड बी कॉल्ड लैंड ऑफ लेक्स. ये तीसरा लेक देख रहा हूँ मैं एंड काफ़ी एग्रीकल्चर भी हो रही है. लुक एट दैट एग्रीकल्चर ओवर देयर, पैडी कल्टिवेशन. लुक्स लाइक अ मिनी केरला टू मी. Looks like a small tiny village in Kerala. You come and ride through all these kind of village roads. That's when you realize that there is a better life out, or there is a life which is different from what you live. मीटर to the destination और ऊपर है काले बादल. अचानक से ना धूप खत्म हो गई और अंधेरा छा गया. तो मैंने भी सोचा कि क्या हो गया भाई. तो वही देख लो क्या हो गया है, क्या हो रहा है मेरे साथ. वेदर इम्प्रूव हो गई है ये बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी धूप कम पड़ रही है तो थोड़ा सांस आने में ना इजी हो रही है. और कर्नाटका के स्टेट रोड्स मैं बोलूँगा कि बस काम चलाऊ है. जैसे कि ये है, कहीं पे अच्छा है तो इतना बुरा है कि मत पूछो कैसा है. और कुछ ज़्यादा जगहों पे तो बहुत ही अच्छा बना है. केरला के जैसे नहीं है कि मतलब ओके 90% ठीक है, 10% ख़राब है. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 60-40 इन द फेवर ऑफ गुड में ही है. तमिलनाडु 95. दैट इज़ वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स. फिर गाय को देख रहा था, मुझे बस 2 पिछवाड़े दिख रहे थे. मुझे लगा कि चलो 2 गाय है. पास आया तो देखा कि किसी का मुंह भी बीच में दिख रहा है. तो टोटल में है 3 गाय. ओ भाई, बहुत ही कम जगह पे 3 बड़े बड़े गाय है, फुल्ली ग्रोन काउस खड़े हैं. बहुत बुरा लग रहा है इन तीनों के लिए. बेलागोला इस 15 किलोमीटर्स चलता है. तो बहुत भयंकर भूख लग रही है. लंच किया नहीं और कल एक बढ़िया सा एक डोसा खा के निकला हूँ, थोड़ा सा इडली भी. तो मेरा पेट में एक दाना चावल भी नहीं है, पूरा खाली है. ये वाला मॉन्यूमेंट विजिट करने के बाद लंच करना पड़ेगा वरना मेरा हालत टाइट हो जाएगी. उसके बाद बेलूर और हलेबीडु देखता हूँ मैं आज हो पाएगा कि नहीं. जस्ट लुक एट दैट वाटर बॉडी. कर्नाटका में बहुत सारे लेक्स आर देयर. wish there was a drone to fly and capture all this beautiful sight actually. उस तरफ there is some type of agriculture, पता नहीं क्या है वो आइटम, पहली बार देख भी रहा हूँ मैं. समथिंग लाइक फेदर टाइप है. एंड रोड का हालत बहुत ख़राब है इन सबके बीच में. Notwithstanding, what a beautiful lake, what a beautiful lake.
ऑनेस्टली मज़ा आ गया देख के। इस रोड्स थोड़ा सा ही हो जाता, can't help that, सब कुछ तो एक थाली में नहीं मिलेगा ना। पहाड़ के ऊपर जिस जगह या जिस चीज़ देखने में आया था मुझे यहाँ से दिखना शुरू हो गया है, वो विंध्यागिरी हिल्स और ये जैन मठा तो दिख गया है हमें। लेफ़्ट लेते हैं और अपन चलते हैं उसकी तरफ। इट लुक्स लाइक एन ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट क्योंकि यू हैव ऑल दीज बैरिकेड। ये सेम चीज़ था वहाँ पे इन श्रीरंगपटना, ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस यू हैड ऑल दीज बैरिकेड्स। तो फाइनली रीच्ड द डेस्टिनेशन, लेकिन तो मैं जाऊंगा और एक जैन खाना खाने जा रहा हूँ अभी। जैन खाना कैसा होता है, आई एम गोइंग टू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज़ माय जैन फूड फॉर द डे। लंच का टाइम, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैं जैन फूड, हाँ लाइफ का पहला जैन फूड है मेरा। तो फर्स्ट टाइम, तो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो खाता हूँ, भूख लग रही है। So now making my way to the Gomateshwara statue. It is atop that hill. चढ़ना पड़ेगा जहाँ पे मैंने अपना लंच किया था। The person was very kind enough to let me keep my belongings there. So now heading on to the top of that mountain. The name of this place is Vindhyagiri Doddabetta. So this is where the great Samadhi or where the great statues. So अंदर जाने के बाद देखता हूँ सब कुछ। थोड़ी दूरी क्लाइंबिंग हुई है एंड लुक एट माई हालत। आई गॉड, अब तो बहुत और लंबा जाना है और सांस फूलती जा रही है। काफ़ी स्टीप स्लोप है, इफ़ यू कैन जस्ट मेक इट आउट। मैन दिस इज टफ एनीहाउ, ऊपर जाने के बाद तो अच्छा ही दिखेगा। सो कमिंग ऑल द वे अप ऑल दीज स्टेयर्स, वी स्टैंड एट द डोरवे टू द एंट्रेंस ऑफ द बिग टेम्पल। सो लेट्स गो इनसाइड, बिकॉज़ इट टुक मी गुड 15 minutes to be here. I think anybody would take that much amount of time to come. So when you climb up the mountain, you get this Jain temple. It's a 14th century Jain temple. Good one. So I'm now bidding goodbye to this Sravana Belagola Digambara statue and heading down back to my bike. निकल जाना यहाँ से। I don't think Halabedu Belur will be a possibility today. So what I'm going to do is I'm going to take my night stay at Chikmagaluru. So Chikmagaluru is where we are going to head next. So it might take me another 10 more minutes to come down. Time on the clock is 4 now. 20 minutes later. So that's it guys, started the journey to Chikmagaluru. Distance दिखा रहा है 113 किलोमीटर, जो कि लगेगा मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लगने वाला है। सो लॉन्ग डिस्टेंस टू गो। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, स्विच ऑफ करेंगे, थोड़ा बहुत बढ़िया सा वीडियो शूट लगाते हैं जहाँ जहाँ मौका मिले। लेकिन आज का जो आइटिनरी प्लानिंग के हिसाब से आई वाज सपोज टू गो टू बेलू Halabedu and witness or rather go and see those UNESCO World Heritage Sites, 3 Hoysala temples which are there in that area. So वो तो मिस हो ही गया, बट अफसोस नहीं है मुझे। आई एम ओके विद इट बिकॉज यही तो है राइड। इफ़ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान तो बहुत ही मैकेनिकल लगेगा, ऐसा लग रहा है ऑफिस का नौकरी कर रहा हूँ। ग्रामीण खूबसूरती, ग्रामीण सौंदर्य, द ब्यूटी ऑफ एन इंडियन विलेज। माय गॉड, रोड ठीक ठाक है, बहुत पतली रोड है, आई एम ओके विद इट, बट द थिंग इज द ब्यूटी, द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी।
सनसेट होने वाली है, टाइम बज रही है कुछ 5 बजे के आसपास है अभी। एंड द रोड एंड द सिटिंग, रूरल कर्नाटका एक ब्यूटीफुल स्पॉट है। हालांकि हम जिस बेल्ट पे घूम रहे हैं वेरी क्लोज टू द वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ बारिश तो होती रहेगी, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। बट इन स्पाइट ऑफ दैट लुक एट दिस अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल प्लेस। गाय भैंस बकरी, माय गॉड, शहर के लड़कों के लिए तो ये नया एक्सपीरियंस होगा जस्ट टू कम एंड लुक एट ऑल दिस। सामने एक बड़ी सी एक फ्लाईओवर है। सो फाइनली आई थिंक नेशनल हाईवे टू चिकमगलुरु आ गई है। इस गाड़ी के साथ भागने में जो मज़ा है ना, तो दूसरे लेवल का ही है। चलो, चिकमगलुरु एक फेमस जगह है। चिकमगलुरु कॉफ़ी बहुत फेमस है, कॉफ़ी प्लांटेशंस बहुत है वहाँ पे। सो इफ़ एनीबडी एवर विजिट चिकमगलुरु, गो देयर। हम अपन अभी जाएंगे और कॉफ़ी वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं। सो वी आर कम अवे फ्रॉम श्रावणबेलगोला। अब चल रहे हैं टूवर्ड्स हासन। हासन से आगे जाएंगे चिकमगलुरु, दी कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मे बी द होल वर्ल्ड ऑल्सो, हू नोस। तो अपन चाय की दुकान चाय पीते हैं। टाइम बज रही है 5:10 इन द इवनिंग। तो आई एम एक्चुअली अ बिट इंक्लाइंड टू हैव अ टी एंड पैसिफाई माई माइंड। तो चाय वाय पीते हैं, रिलैक्स मारते हैं 10-15 मिनट, फिर चलते हैं। टाइम है 2 घंटे दिखा रहा है। हाईवे अगर इसी कंडीशन में अगर 3/4 डिस्टेंस भी रहेगा ना, अराउंड 60-70 किलोमीटर, तो आसानी से 1 घंटे में हो जाएगा। बाकी का 30 किलोमीटर देख लिया जाएगा। तो चलते हैं फिर। सो लेट्स इट, getting on motorcycle and getting away from here. Chai time done. Time to go 90, distance to go 90 kilometers and time 2 hours. So 45 kilometer per hour का अगर एवरेज स्पीड दिखा रहा है कोई भी गूगल मैप, that means the road should be fine from here till Chikmagaluru. Sunset होने वाली है and see the weather. So before the darkness hits, let's go at this fastest speed as I can. तो आपको शायद अभी ज़्यादा फुटेज नहीं देखने का मिलेगा। इसी के साथ हम हासन सिटी में या हासना सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। तो सिग्नल में अभी होगी लंबी सी एक वेट, 80 seconds टू गो। तो वी आर नाउ ऑन द बेलूर रोड गोइंग टूवर्ड्स बेलूर एंड वहाँ से हम जाना है टूवर्ड्स दिस प्लेस कॉल्ड चिकमगलुरु। लेकिन ये रोड का एक ख़ास बात बताता हूँ, 1 नंबर का ख़राब रोड है। अभी थोड़ा सा पैच ठीक ठाक मिला है, लेकिन वैसे रोड में पूरे गड्ढे, भर भर के गड्ढे। बीच में जैसे आपने देखा था आपने, एक अनहोनी, मतलब कहीं से भी एक स्पीड ब्रेकर आ जाती है। लोग इतना ना हाई बीम चला के आ रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा आगे, बस गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, वो हालत है। पता नहीं लोग इतने कहाँ से निकल के आ रहे हैं। आज के दिन संडे के दिन है, इसलिए शायद सब के सब निकल रहे होंगे चिकमगलुरु से, सीधा बेंगलुरु जाने वाली क्राउड होगी। लेकिन एकदम बाई हाथ तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, इतनी हाई बीम है। सो दिस हैज़ बीन अ स्ट्रगलिंग नाइट राइड। आई डिडंट नो दैट जब स्टार्टिंग हुआ था तो इट वाज लुकिंग वेरी गुड एज अ रोड्स। अब बहुत देर बाद आई थिंक आ गए हैं हम लोग ऑन द रोड विच गेट्स मी टू चिकमगलुरु। भाई गॉड, कुद्रेमुख 118 किलोमीटर, बहुत दर्द है भाई। 11 किलोमीटर बचा हुआ है अभी जाने में, बट पेनफुल। देख रहे हो कितने गाड़ियाँ हैं, कितने गाड़ियाँ आ रही है, देखिए। आई गॉट सो मेनी व्हीकल्स कमिंग आउट ऑन दिस रोड। चिकमगलुरु में स्वागत है फाइनली वो टाउन, वो सिटी जो बहुत सालों से सुना है, उसमें आने का सौभाग्य है मेरा। आई रीच फाइनली द डेस्टिनेशन, बट मुझे जाना है एक जगह, होटल, जहाँ पे मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे पहले से आए हुए हैं। तो आई विल गो देयर एंड आई विल मीट देम। भूख लग रही है तेज़ी वाली, पूरा एक बिरयानी खाने का मन कर रहा है। सो फाइनली चिकमगलुरु में आ गया हूँ एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू स्टे, विश्वास लॉज। तो मेरे साथ एक्चुअली 3 और दोस्त मिल रहे हैं मेरे को फ्रॉम कोयम्बतूर, कविन एंड हिज 2 फ्रेंड्स। तो मैं उनके साथ अभी रोक रहा हूँ, तो आगे का एडवेंचर पूरा उनके साथ होगा। वो लोग आए हुए हैं अपने वाइट बलेनो में। तो उनके साथ ये इशू हुआ है कि वो लोग एक दिन पहले निकल गए थे, जो मेरा एक्चुअल प्लान था।
और वो अपने प्लान फॉलो किए जो मैंने उनको बना के, जो मेरा एक्चुअल प्लान था वो उस पर फॉलो कर रहे हैं, और मैं एक दिन पीछे हूँ तो मैं अभी जाके उनसे मिला हूँ. So now what I am going to do is I am to catch up with them and then explore Chikmagaluru and other places. So see you in the next vlog.